Hello, Wisdom London Tarot. This is Madhura. I'm back with some new reading, and today's topic is quite interesting. This is about our future spouse and when, where, how you are going to meet the person. Who is this person, by the way? And obviously, some feelings and thoughts involved. Mostly, I'll be using some tarot decks and other few oracle decks. So let's just start with today's reading. First of all, we will see who is this person. So for that, I'm going to use this relationship archetype card as well as harmony tarot deck. Okay, so let's start with the relationship archetype card first. It's already shuffled. I'm just making it a bit quick. Okay, I got two more. Okay, bottom deck energy, I show you the real deal. The real deal lets you feel loved, freedom and satisfactory by being the real you. So this person is somebody who will let you be yourself. ऐसा है कि आप जैसे हो, जैसे जिस तरीके की इंसान हो, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये इंसान आपको फुल फ्रीडम देंगे. आप जो चाहते हो, आपकी जो पसंद है, उसके पूरे हक से जीने की एक बैलेंस वो बना के रखेंगे. सबसे बड़ी बात ये है, और यही सबसे बड़ी बात होती है कोई हेल्दी रिलेशनशिप की. लेट्स सी नाउ द अदर कार्ड्स. The perfectionist. Okay, dating a perfectionist can be a challenging experience as they tend to apply the pressure for things to be 100% right to absolutely everything. ऐसा हो सकता है कि इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकर है, उसके साथ साथ ही बहुत परफेक्शनिस्ट है. कोई भी काम काज पे उनको एकदम 100% सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिलते तो तब तक के लिए वो छोड़ते नहीं है. ये चीज़ वो जारी रखते हैं बाकी के लिए भी. वो चाहते हैं कि बाकी भी इसी क्राइटेरिया से चले. हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट हाँ, हालांकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर स्पाउस रीडिंग की, तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि उनको समझा सकते हो, उनको सिखा सकते हो इस बारे में कैसे थोड़ा सा लूजन होना ज़रूरी है. सो दिस पर्सन, आई एम नॉट सीइंग इट अ नेगेटिव ट्रेट, बट इट कुड बी समटाइम concerning and sometime maybe annoying as well, but we can overcome this matter if we take it properly. Now, the jail pack. Dating someone who is hot and cold just makes you feel bad about yourself. Okay, it's not about something we are taking negatively. What this person could feel like is like kind of a back and forth energy sometimes, who tries to do that to know the situation better. So we may feel like this person is somebody who is ghosting or something else, breadcrumbing, but that person is not like that. The thing is, they want to know the situation better, and for that they adapt with the situation quite abruptly. ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी में वो अपने नेचर को बदल देते हैं, जिसके साथ आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, या फिर आपके साथ थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, ऐसा हो सकता है. बट इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एनर्जी. आई फील लाइक इट्स लाइक you are somebody and this person is somebody as well, a bit different. So let's see with the other one, the player. These archetypes must deal with multiple people at the same time, so they usually have incredibly good time management. Okay, now this person is not a player, by the way. What I felt, this person dealt with a player type. Okay, in this particular spread I am feeling, I am having the energy this person dealt with some kind of player type energy, or maybe they felt like I need not to settle down with somebody, so they just play around. It's not a playboy playgirl energy, but it's like roaming around, that's it, commitment phobic or something like that. But when they see you, they feel like you are kind of linking the gap or bridging the gap. So
this is what the person is. The chess player, professional mental trainer. Wow, that's kind of a deal, man. Because this person could belong to some kind of work setup where they may deliver some kind of professional trainings, or like they have their business setup where they literally train people with their mind. And maybe they could be kind of emotional trainer or emotional management trainer, like however the current job fields are there. So they could belong to online platform as well. उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रह सकता है. ऐसा ये भी हो सकता है कि वो चेस में बहुत माहिर है, उसका एक हॉबी है चेस प्लेइंग, जहाँ पर उसके ब्रेन बहुत ज़्यादा ही दौड़ते. सो ही और शी कुड बी अ किंग ऑफ शोर्स एज वेल इन दैट रिगार्ड. ओके, सो दिस पर्सन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ to basically consider as future spouse. Keeping it here, this is what your person is. Now I'm just gonna channel some tarot to have a look who is this person. So let me, okay, hold on. I don't know why I just felt I'll use some other deck rather than Harmony Tarot. Okay, so give me a moment. I'm gonna use this Chimera. Okay, Chimera is perfect for this. Let's just shuffle it. कौन है ये person? Okay, that's enough, I guess. Let's see. Trickster. Oh my god. Okay, this is the oracle card actually. Ten of Pentacles. My god, it's quite a lot. ट्रिकस्टर एनर्जी कुछ मैजिशियन की तरह है इस टेक में. ट्रिकस्टर एनर्जी को हम जिस तरीके से यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से इस्तेमाल होगी. ट्रिकस्टर यानी कि दिस पर्सन कुड बी वेरी मच कंसर्निंग विद देयर ब्रेन. देयर ब्रेन इज़ लाइक अ काइंड ऑफ बॉम्बशेल. सो ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की शुरुआत में वो आपको जांच ले बहुत तरीके से. इसीलिए इस जगह पे अगर आप देख पा रहे हो, एक ये एनर्जी आई है कि हॉट एंड कोल्ड. आई डोंट फील लाइक दिस पर्सन इज हॉट एंड कोल्ड. व्हाट दे कैन रादर डू इज बीइंग हॉट एंड कोल्ड समटाइम इंटेंशनली टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टाइम वो कुछ सिचुएशन को अपनी तरफ रखने के लिए ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करे जो हो सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिले करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंसान ऐसे हो सकता है कि अगर उसको अभी अभी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना है या फिर बहुत सारे चीज़ सोचना है, समझना है, तो वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के डिले के लिए उस हिसाब से प्लान कर सकते. दिस इज़ नॉट अ मैनिपुलेटिव एनर्जी बाय द वे. व्हाट आई फील लाइक, they could be a commitment phobic person. Okay, sometimes could be possibly, or maybe they are first time deciding or settling down with you, so they need to think about it more than once or more than 10 times. So they will take time, they will do certain activities which may not go as per your guidelines, but somehow give that person time. This person will be kind of a bit slowing down kind of energy to take any action. It takes literally time from this person. This is what this person is. Even this person could belong to some profession. For example, some mental health profession, could be psychologist, could be any kind of psychiatrist who literally knows how the brain works, how the mind works. ऐसा हो सकता है कि उससे बिलोंग करे ये इंसान. ऐसा हो सकता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करे जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना आता हो.
लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा एक प्रोफेशन से बिलोंग कर सकती है जहाँ पर उसकी दिमाग बहुत ज़्यादा काम करती हो और दिमाग की बहुत वैल्यू है उसका। ओके, सो दिस इज़ जस्ट द वे द पर्सन इज़। डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ मैनिपुलेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट। ट्रिकस्टर एनर्जी इज़ लाइक दे आर टेकिंग सम एक्शन टू make this strategy more fruitful. Okay, now let me just tell you with this Ten of Pentacles, ऐसा एक इंसान जिसको विजन कैसे सेट करना है ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। ओके, सो बाय लुकिंग एट यू दे विल फील you are the person who is the glory, who is the aura they were searching for. They will take time to settle down maybe, and you are also not in the rush. Okay, they may face some of the person who rush with them or like उसके पीछे भागते रह जाते हैं उसको हासिल करने के लिए, पर आपको देख के उसे लग सकता है कि इंसान थोड़ा नहीं बहुत ही अलग है सबके, बहुत सबसे जुदा है जिसको हम कहते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ा सा कंसिडर करेंगे आपको कि हाँ ये कुछ अलग इंसान मुझे लग रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पीछे भागते नहीं है। इसी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारे सोच भी आ सकता है कि इंसान ऐसा ही है या फिर ऐसा होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या है, जो भी है। दिस पर्सन समटाइम्स क्रिएट सम अननेसेसरी कन्फ्यूजन ऑल्सो इन देयर ब्रेन बिकॉज देयर ब्रेन इज क्वाइट ओवर एक्टिव। ओके, with this two energy, perfectionism and chess player, so they may take time, and even it is the pentacle energy, but when they feel like this is the vision they have seen with you, they will not take time more before settle down, because they also know about if they do not settle down with you, you will be taken away by somebody. You are not going to wait because you are the prize. Somehow you are this Ten of Pentacles. You are this last pentacle they were searching for. आपके साथ एक बहुत हद तक दूर का विजन वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बिल्डिंग करने की एनर्जी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कुछ अपने आप का प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदने की एक एनर्जी आ रही है, हो सकता है ऐसा। इस इंसान के कुछ बिजनेस सेटअप रहने की बहुत हद तक चांस है। उसका कुछ अपना प्रोफेशन हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, मेन प्रोफेशन है, उसको छोड़कर भी उसका कुछ बिजनेस सेटअप रह सकती है। इतना काफ़ी है कि इंसान फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। इस इंसान के पास फाइनेंस की कुछ कमी नहीं है, और उसको ये भी आता है कि दिमाग इतना चलाना आता है कि कैसे उसको फाइनेंस क्रिएट करना है। सबसे बड़ी बात, फाइनेंस अगर लॉस पे जा रहा है तो बहुत कम इंसान हैं जो फाइनेंस कैसे क्रिएट करना है इस बारे में उनको पता रहता है। तो ये एनर्जी बहुत ही शानदार एनर्जी है। मुझे लग रहा है इस इंसान की ब्रेन की बहुत कीमत है। बहुत सारे लोग इसकी ब्रेन के लिए इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत गुड डिसीजन मेकर हो सकती है, ठीक है। लोगों को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, बहुत अच्छी तरीके से उसको पता है। आपको भी सिखाएंगे, या तो फिर अगर आप उनके साथ आओगे, जुड़ोगे, मिलोगे, तो ये एक अलग केमिस्ट्री बनेगी। ओके, सो लेट्स सी नाउ व्हाट्स दिस पर्सन इम्प्रेशन ऑफ यू व्हेन दे आर सीइंग यू। ओके, शिमेरा से हम देखेंगे ये पर्सन की इम्प्रेशन क्या है आपके लिए। जब वो पहले आपको मिलेंगे उसकी इम्प्रेशन क्या है आपके ऊपर, क्या इम्प्रेशन क्रिएट होगी। ओके, चलिए। ओह माय गॉड, सी डिडंट आई टेल यू समथिंग अबाउट विजनरी। सी फॉर्स द सी, ये इंसान की पहला इम्प्रेशन आपके ऊपर जो आएगी वो है आप बहुत दूर तक सोचने वाले इंसान हो। आपकी एक फोर साइटेडनेस है जिसको हम इंट्यूटिव पावर कहते हैं। फ्यूचर को देखना, एम्बिशंस को साकार करने की तरीका आपको आती है, या फिर आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। खाली बैठने वाले इंसान आप नहीं हो। तो ये जो माइंड पावर है आपकी जो क्रिएटिव सोर्स है, उसको लेकर वो बहुत हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंसान के पास ब्रेन ज़रूर है, बहुत सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं चीज़ों को कैसे क्रिएटिवली मैनिफेस्ट करना होता है, उस चीज़ों में उनको कुछ हेल्प चाहिए। तो बिजनेस सेटअप के लिए या फिर एक पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा इंसान आपको कंसिडर करेंगे। सबसे बड़ी बात है आप स्पिरिचुअल
टाइप के इंसान हो सकते हो, जहाँ पर आपको एक सोच है कि आप दूर का भी सोच सकते हो, ऐसा भी आप ग्राउंडेड भी हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, यानी कि आप फिजिकल भी हो, स्पिरिचुअल हो, दोनों वर्ल्ड में एक बैलेंस बनाए रखना आप में आता है। जहाँ पर आप अर्थ के मैटर्स को लेकर कॉन्सर्न हो, वैसे ही आप इनके जो बियॉन्ड मीनिंग है, इनके जो इन डेप्थ मीनिंग है, इसके बारे में आपकी सोच बहुत गहरी है। मुझे लगता है ये इंसान आपके दिमाग को लेकर हैरान रह जाएंगे। आपके दिमाग की जो सोच है, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपकी जो क्रिएटिव फोर्स है, जिस तरीके से आप सोचते हो, उनमें जो क्रिएटिविटी भरी हुई है कूट कूट के, उसको लेकर वो सोचते हुए हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये उनका पहला इम्प्रेशन है। द मोमेंट द आईज मीट, they feel like this is the one I was searching for. I feel like in this card, this person is searching for this 10 of Pentacles. And they have found you. Here is this 10 of Pentacles. So if this is the 9 of Pentacles, as if this is the 9 of Pentacles, you are coming together with this one extra Pentacle. Okay? It's very fulfilling energy. This is the person's impression on you. What this person's impression on you. This side. Now we'll see with what your impression on this person. जब आप देखोगे तो आपका क्या इम्प्रेशन रहेंगे, आप क्या सोचोगे इस पर्सन को लेकर। ठीक है, चलिए आप क्या सोचोगे, मेरे विजिटर्स की इम्प्रेशन क्या होगी इस पर्सन के ऊपर। चलिए, ओके, 2 cards, great, let's see. Oh my god, I don't know why all the cards are basically coming from major arcana. Actually, no, sorry, not major arcana, it's like the oracle in the Chimera tarot, the muse and 7 of Pentacles. Oh my god, it's a Pentacles energy. तो दोनों की बराबर एनर्जी है, Pentacles and Pentacles. It's like a complementary energy. Pentacles की एनर्जी है। पहले 7 of Pentacles से शुरुआत करते। मुझे लगता है आप इस इंसान को पहले देखते हुए आपका दिमाग यही कहेंगे कि मेरा जो वेटिंग है, जितने दिन तक, जितने सालों भर मैंने वेट किया, अभी जो सारे एफर्ट मैंने लगाया मेरे रिलेशनशिप में, या फिर एक अच्छे इंसान जो मेरे लिए बने हैं उनको ढूंढने के लिए, वो इंसान मुझे आखिर में मिल ही गया। ओके, दिस इज व्हाट माइट बी योर फीलिंग ऑफ दिस पर्सन और इम्प्रेशन ऑफ दिस पर्सन। द 7 of Pentacles talks about you are bearing the fruit of your labor. Okay, this is quite beautiful actually. इन इंसान में आप खुद के रिफ्लेक्शन देख पाओगे, एक ड्रीम को फुलफिल करने की तरीका आप सोच पाओगे, और जो सारे क्रिएटिव फोर्स आपने आज तक के लिए प्लान करके रखा है उसकी एग्जीक्यूशनल पावर इनमें देख पाओगे आप। आपके करियर को लेकर, आपके फैमिली लाइफ को लेकर, आपकी हॉबी स्किल को लेकर, आपकी और कोई साइड हसल है तो उनको लेकर, आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि इस इंसान के ऊपर एक स्लो बट स्टेडी स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप शायद सोच सकते हो इस इंसान के पास आके, या फिर इस इंसान के मिलने के बाद, कि बहुत रिजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है। जो भी अर्निंग करते हो उसको सही तरीके से खर्चना उसे आती है, और कैसे उसको रखना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, ये जो पावर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक बिजनेस के लिए, ये सारी चीज़ उनमें बहुत हाई लेवल की है। ओके, सो यू विल फील मोर, आपके लाइफ में कुछ बैलेंस लौटेगी, जो बैलेंस बहुत हद तक नहीं है मुझे लग रहा है, कुछ चीज़ों की बैलेंस मुझे लग रहा है ये आपके लाइफ में लौटेगी। द म्यूज इज टॉकिंग अबाउट मेनली यूजिंग दिस गैप, यूजिंग दिस क्रिएटिव फ्लो एज इट इज़। इस इंसान को देखिए आपको लग सकता है बहुत फ्री फ्लोइंग इंसान है,
दिमाग में कोई सोच नहीं है, हालांकि उसके दिमाग सोच से भरी हुई है, पर आपको लग सकता है, देख के आपकी इम्प्रेशन हो सकता है कि बहुत ही ट्रंक्विल सेरेन पर्सन है, ज़्यादा चीज़ों को रश नहीं करते और बहुत ज़्यादा खींचते हैं अपने पास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करने वाले पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता ना हो, बट दिस पर्सन बिलीव्स इन सम काइंड ऑफ वी अट्रैक्ट गुड्स विदाउट इवन थिंकिंग टू मच। इसके पास जो आते हैं, जो सारी चीज़ वो मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ईजीली करते हैं, क्योंकि चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा शायद भागते नहीं है, या फिर उनका ज़ोडियक या फिर उनके नेटल चार्ट में ऐसा कुछ प्लेसमेंट है शायद, जिस वजह से लक, उसका जो फाइनेंशियल लक है या फिर एबंडेंस है वो बहुत हाई है, या फिर बहुत फॉर्चून है उसके, मतलब फॉर्चुनेट है वो उस साइड से। Even I feel like this person could be very much related to, or very much having kind of admiration to the music, or maybe they could play some instruments as well, some kind of instruments, not as a professional or the main source, but they love to play it, or maybe they feel like you are their muse. So some kind of thing is like you feel this is how you manifested this person. ये इंसान आपके ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हुआ है आपके। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिसेंटली इस लव के मामले में कुछ सोचना छोड़ दिए हो, या फिर आप भाग नहीं रहे हो, ऐसे ही आपकी एनर्जी, जिस वजह से ये इंसान आपके तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, फ्लोटिंग इन द रिवर एंड कमिंग टू द प्लेस वेयर दे बिलोंग। समथिंग आई फील लाइक दे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ देयर डिवाइन सोल, दैट इज यू। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ये जो सोच है, ये जो आपको दिख रहा है, वो उस इंसान की तरफ आपकी जो एनर्जी है वो है, ठीक है। ये ट्रिकस्टर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। अभी चलिए हम चैनल करते हैं और कुछ कार्ड्स, जहाँ से हमको ये पता लगे कि इंसान आपको किस जगह से मिल सकती है, या फिर कब आप मिल सकते हो इस इंसान से, ठीक है। इसके लिए मैं जो डेक यूज़ करूँगी वो है सीजन्स विच लिथा ओरेकल। चलिए मैं शफल करती हूँ कार्ड को। कैसे और कहाँ पर आप इस इंसान को मिल पाओगे? Where and how? Okay, let's see. Where and how this person will be. Okay, it takes time. Okay, lemonade number 22. Make the most of your situation by opening your mind to new possibilities. Oh my God, that's great. देखिए, आपके पास एक पर्टिकुलर टैलेंट है, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ lemons. Out of lemons you can make lemonade, out of lemons you can make lemon pie, out of lemons even you can use that lemon tea. So what you are going to make out of your talent or out of your skill, this is up to you, but divine is telling कि किसी भी जगह से किसी भी वे में आप इस इंसान को मीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत अजीब सा एक मैसेज है शायद, या तो फिर थोड़ा सा रेस्टलेस काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर ये सही डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है कि किस जगह से आप मीट कर सकते हो, पर आपको इतना बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है कहीं पर ज्वाइन करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हो सकता है इनविटेशन गैदरिंग, ये हो सकता है कहीं पर जाना जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़े कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो, सारे के सारे अपॉर्चुनिटी, या फिर हॉबी क्लास ज्वाइन करना, कुछ भी हो सकता है। दिमाग को, माइंड को खुला रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान उसी जगह पे आपके लिए वेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा भेनू के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा एक वाइब आ रहा है कि कोजी एटमॉस्फेयर, कोजी कंफर्टेबल प्लेस हो सकती है, कोई वेडिंग सेरेमनी हो सकता है किसी का, या तो फिर एक पार्क या फिर गार्डन एरिया, नेचुरल वॉक पे
ये इंसान मिल सकते हैं कहीं पर एक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप कुछ क्रिएशन पे लगे हुए हो या फिर क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर आपकी ध्यान किसी और तरफ भटकते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। उस टाइम पे, उस जगह पे ये इंसान आपको मिल सकती है। ओके, व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, दिस पर्सन इज समहाउ आउट ऑफ द ब्लू इज कमिंग टू जॉइन यू। ओके, ऐसा हो सकता है, पर समर वाइब ज़्यादा है। हालांकि ये पूरा ओरेकल समर रिलेटेड है, लिथा ओरेकल है, तो इस जगह से आप ये इंसान को मिल सकते हो। चलिए हम थोड़ा और कार्ड लेते हैं ये देखने के लिए कि मैं शिमेरा टैरो की यूज़ करती हूँ इसकी वजह से कि फेयर we can make, we have just channeled, we'll be channeling that how you can meet that person. मैं ज़्यादा टैरो आज यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो टैरो या फिर ऑरेकल में यूज़ कर रही हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। ओके, हाउ दिस पर्सन, ओके, कैसे मीट करोगे? Spirit, give me one card. Thank you. Okay. चलिए हम देखते हैं। Oh my God, the magician. मैं बहुत हैरान रह गई हूँ। इस वक्त पे आपकी एनर्जी ऐसा है कि किसी भी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी माइंड पर। अब ये देखिए, उनका जो एनर्जी था और आपका जो एनर्जी है कितने हद तक सिमिलर है, पर दोनों ही दो तरीके की मैजिशियन है, कुछ अलग तरीके की मैजिशियन है। आप में क्रिएटिव फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इस डिपिक्शन में देखिए, ये जो स्काल है इसको कैसे रूप देना है, इसके अंदर कैसे एनर्जी को भरना है या फिर कैसे इसको इस्तेमाल करना है, किस तरीके की इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, ये आपके ऊपर है। बहुत सारे चॉइसेस है क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स आई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि इस इंसान को आप कभी भी चाहते हो किसी भी जगह पे बैठ के, I mean while you are writing something as well you can manifest, but the main point is while you are manifesting keep your brain and mind open to possibilities. थोड़ा सा अगर आप ब्लॉक करके रखे हो कुछ वजह से उसको ओपन करने पर ये मैनिफेस्टेशन फुल ब्लोन होगी, एकदम अपनी जगह पे आएंगे। मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ प्रीमॉर्डियल साइंस या फिर प्रीमॉर्डियल टेक्निक्स में माहिर हो या फिर बिलीव करते हो या फिर आपको पता है किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। सो आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू एक्चुअली टेल दैट एग्जैक्टली हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग। इतना समझ में आया है कि आप कभी भी किसी भी हालत में चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान को। इवन जब आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, तब भी आप कर सकते हो, पर किसी चीज़ों को पहले हटाना पड़ेगा आपकी एनर्जी से, या फिर अगर हटाना ज़रूरी है तो ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं चाहिए तो नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, बट जिस भी मोमेंट पे आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे इस इंसान को आप कर पाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी दिस? ओके, नाउ लेट मी शेयर सम ऑफ द टाइमलाइंस विथ यू, कब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस इंसान की स्ट्रेंथ और फ्लॉज भी हम देखेंगे साथ में। इस इंसान की जो स्ट्रेंथ और फ्लॉज है वो भी हम देखेंगे साथ में। चलिए टाइमलाइन देखते हैं, कुछ प्रोबेबल टाइमलाइन। ओके, ओके, hold on. In 18 days, very early, when your energy aligns, that's what I was talking about with the magician, right? Just now. Sorry, I have a little space. Tomorrow, as early as possible.
वंस यू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, ओके ग्रेट, कुछ चीज़ों की आप सीकिंग कर रहे हो इन 3 days, टुडे और वेरी क्विकली, ओके। तो ये जो एनर्जी आपको दिख रही है ना, इन 18 days, टुमारो, टुडे और वेरी क्विकली, यही मैजिशियन एनर्जी को दर्शा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि मैजिशियन इज लाइक, इफ आई वांट टू मैनिफेस्ट नाउ आई कैन डू दैट विच क्राफ्ट। सो इट्स रियली अप टू यू how and when you are literally going to manifest this person. So you can see it, right? Now we'll be moving towards some of the important messages with Shimera. This person's strength and flaws. Okay, इसका strength point क्या है, ये इंसान की strength point क्या है, spirit इसकी, okay, इसका flaw, okay, great. ये 2 कार्ड फ्लॉ पे आई है और ये स्ट्रेंथ पॉइंट है। ओह माय गॉड, इट्स 6 ऑफ शोर्स। बहुत शानदार इंसान है ये। इंसान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है किसी भी जगह पे ये स्टक नहीं रहते। इसकी ब्रेन क्लैरिटी मांगते हैं कोई भी सिचुएशन से। अगर ये रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर चुके हैं या फिर पास्ट में गुजर चुके हैं, उस चीज़ों को लेकर वो तब तक स्टक रहते हैं जब तक उनको ब्रेन की क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि वो बहुत जस्ट लविंग पर्सन है। जस्टिस वो पसंद करते, ताकि उनकी तरफ से भी कोई अनजस्ट ना हो, वो इंश्योर करते। और इस इंसान को जिस भी वक्त पे वो क्लैरिटी मिल जाएगी उधर वो एक वक्त भी नहीं ठहरेंगे। हालांकि वो रिवेंज नहीं लेते, उसका रिवेंज यही है कि साइलेंटली वो मूव ऑन कर जाते और उसकी कोई क्लैरिफिकेशन किसी और को नहीं देते, कि उसको इसको पता है कि अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है इंटेंशनली, तो इस इंसान को पूरे के पूरे समझ है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने टाइम, उसकी जो वैल्यूएबल टाइम है वो बिल्कुल भी किसी और के ऊपर बर्बाद नहीं करते हैं। और यही एक रिफ्लेक्शन वो आप में भी देखते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ लव के मामले में नहीं है, कोई भी हो सकता है, उससे बाहर आपको बहुत जेंटली आपको बाहर निकल के लेके आएंगे। इसकी ब्रेन शॉर्ट्स की एनर्जी है, पर मुझे इतना लग रहा है कि ये बहुत स्टेबल भी है, बहुत पेशेंट भी है। आपको निकल के आने के लिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, टाइम लगेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव देंगे ताकि आप भी आपके खुद के डिसीजन ले पाओ। एक डिस्कशन मोड पे ये चलते हैं इंसान। बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकती है आपकी, बहुत अच्छा गुड कॉम्पेनियन बन सकती है। सबसे बड़ी बात यही है इस रिलेशनशिप की, ठीक है। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बहुत रेजिलियंट पर्सन है। 6 ऑफ शोर्स एनर्जी यही कह रही है इधर। इसका जो फ्लॉ या फिर इम्प्रूवमेंट पॉइंट है, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, दैट्स काइंड ऑफ नाइस वन। पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, इसका फ्लॉ भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ पॉइंट है, पर एक टाइम पे अगर ये ज़्यादा चले गए, मतलब टाइम से ऊपर चले गए, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इस इंसान के दिमाग में हमेशा से एक फाइनेंशियल फ्रीडम की एक डर रहता है। हालांकि इसके पास कुछ भी कमी नहीं है, पर कहीं ना कहीं इसको लगता है कि कब तक मैं ये ड्रीम को हासिल करूंगी, और उसके पीछे वो भागते रहते हैं। इसकी वजह से उसका ईटिंग स्लीपिंग हैबिट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि पहले ये परफेक्शनिस्ट एनर्जी निकल के आई थी। हाँ, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। तब तक रोकते नहीं है खुद को जब तक उसे पूरे की पूरी क्लैरिटी नहीं मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ही शेयरिंग पर्सन है, तो अपना पेनीज, अपने फाइनेंस को किसी की तरफ बढ़ाते हुए वो 2 बार सोचते नहीं है। तो इस चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, ताकि वो किसी बेवकूफ़ इंसान के ऊपर ये खर्चा ना करे, ठीक है। आप उनमें बहुत माहिर हो, सोचने वाले इंसान हो कि किसको देना चाहिए किसको नहीं। तो इस इंसान को बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना, क्यूरियस बन के रहना, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना आता है, पर इस वजह से शायद हो सकता है कि रेगुलर रूटीन में थोड़ा सा ट्रबल हो जाए, ठीक है। इसकी एक ही डर है, जो बेवजह डर है, मुझे इधर पूरा स्प्रेड में से निकल के लग रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इफ़ आई कैन नॉट प्रोवाइड टू माई फैमिली। देखिए, बहुत सबसे अजीब बात है कि आपकी पूरे के पूरे स्प्रेड में कोई भी शोर्ट्स, कोई भी कप्स, कोई भी वांट्स की एनर्जी नहीं है। सारे के सारे एनर्जीज पेंटिकल्स पे घूम रही है।
आपकी तरफ से भी, आपने भी सही पहचाना इस इंसान को। तो ये पेंटिकल्स एनर्जी यही कहते हैं कि इंसान बहुत स्टेबल है, बहुत प्रोवाइड करने वाले इंसान है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोवाइडर एनर्जी लग रहा है मुझे। सारी की सारी चीज़ वो आपको लाके रखेंगे, लाके देंगे जो आपको चाहिए। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जिस तरीके से उसने ये हासिल किया है, उसकी स्टोरी किसी को सुनाने नहीं बैठेंगे। कुछ कुछ इंसान ऐसा रहता है कि देखो मैंने आपके लिए ये किया वो किया, इसके लिए क्या क्या करना पड़ा आपको पता है या नहीं। ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान मानते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये अगर मेरी पार्टनर है, इसको मैं पसंद करती हूँ, इसको मैं प्यार करती हूँ, इसको मैं प्रोवाइड करूँगी। थोड़ा सा आपको क्वीन मानते हैं, मतलब एक एनर्जी जो आपको मानते हैं कि हाँ आपका अगर आपका करियर है करो, पर लेट मी प्रोवाइड यू, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। थोड़ा सा ऐसा एनर्जी लग रहा है। शायद आप कभी कभार इससे इरिटेट भी हो सकते हो, बट इट्स लाइक अ मैटर ऑफ टॉकिंग ओनली, कॉन्वर्सेशन। ओके, चलिए अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इस इंसान की लव मैसेजेस क्या है आपकी तरफ। ठीक है, चलिए इसके लिए हम 100 रीजन्स आई लव यू डेक को देखेंगे और थोड़ा सा चार्म भी रीड करेंगे। कुछ मैसेज आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है, सेम मिल सकती है, जो इधर इस डेक में रिपीट किया गया है। तो चलिए देखते हैं ये इंसान आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त पे। इस इंसान की हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है, तो उसके हिसाब से ही लीजिए। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको शफल करने में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आई मिस यू इवन वेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। सो ये बहुत इमोशन को बहुत अलग से छुपाते हैं, मुझे लग रहा है। We can imagine a wonderful future together. Great. So this is that visionary energy. I just dropped this card inside. जो विजन 10 ऑफ पेंटिकल्स में और विजनरी में आपको देखने को मिला, एक कॉम्प्लीमेंटरी एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है, यू हैव फैशन इन ऑल दैट यू डू। यस, सो दिस इज कन्फर्म दैट दिस पर्सन इज ड्रॉन टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी। जिस तरीके, सिर्फ क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कैसे एक आर्ट को क्रिएट कर रहे हो, म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है। इट मीन्स अबाउट हाउ यू आर पैशनेट अबाउट लाइफ, हाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ। ओके, यू आर माई इंस्पिरेशन। येस, दैट इज वेयर दिस person is finding inspiration for their business setup as well. I learn something new from you every day. Lifelong learner. Okay. The way you walk, talk, smile or laugh or even cry just melts my heart. ये इंसान आपके लिए बहुत जेंटल रहेंगे। ये साइड इसने किसी भी इंसान को जिंदगी में दिया नहीं है। शायद आप उसकी जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा होगा उसमें भी नहीं दिया है। पर आपकी आंखें हो सकता है बहुत कमल हो, बहुत सुंदर हो, आपकी सोल आपकी आंखों में दिखता है, झलकता है। ये इंसान को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल डेटिंग फेज में ये हो सकती है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। येस, यू आर केयरिंग पर्सन, दिस पर्सन वैल्यूज दैट। क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस पर्सन को शायद गलत भी समझते होंगे इसके परफेक्शनिस्ट नेचर की वजह से। आप जज नहीं करते हो। I can lose myself in the depth of you. Oh my God. I literally did not see that message. So yes, this person is full of love with your eyes. Let me see some more cards. Some more, yes. Let me take this first. I start missing you. Oh my God, it's a double confirmation, man. छोड़ने वाले में से नहीं है। You know me better than I know myself. Wow. So this is why, that is why this person is drawn towards you. Some kind of clarification they found from you. You complete me. Okay. So with that, the reading is getting complete and I'm gonna read some of the charms over here. So let me have my time. Basically, this is my charm packet. Let me just shuffle like this. I can't find my bowl of charm bowl, so I'll be having some plenty of charms over here. Okay, some more spirits, some more. Okay, another. Thank you. Okay, hold on. Wow, a relationship
which will grow with time beautifully, and a spiritual glow will be there. Okay, ग्रोथ बहुत है इस रिलेशनशिप में जो आपको दिखने को मिलेगा धीरे धीरे. It's divinely guided, emotionally fulfilled. ऐसा एक रिलेशनशिप है. डिवाइन की इसके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है. इस रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है. ओके, दिस इज व्हाट दिस cat is intuitive energy. Something is changing in your life which is literally on the divine timing and you are on the right track. This is this charm. So it's kind of feline energy as well, feminine. This person is actually feminine. उसको बाहर से देख के आपको नहीं लगेगा. और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कैट पसंद है या फिर एक थोड़ा सा लोनर एनर्जी है, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड एनर्जी है, ऐसा भी हो सकता है. And this is a broken charm from my earring actually. You are the missing puzzle piece of this person and they are kind of confident about it as well. Okay, ऐसा हो सकता है कि आप उनके मिसिंग पजल पीस हो जिसको वो ढूंढ के निकाला है इतने दिन बाद. Okay, this is exactly the Mermaid Tale it's talking about. This is the energy of free flowing energy, like go with the flow. This is what this person is, going with the flow. As you can see, they are pure by heart as well. They are very quite communicative as well. And the most importantly, you got this magical unicorn charm. So this person is a pure magic who is coming towards your life. Nobody will be denying it. And some people who are kind of jealous about this person or jealous of you, they will be like हैरान रह जाएंगे कि भाई आपको कैसी इंसान मिल गई, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आया ना यकीन. Okay, so this was your reading. This is Madhura, Wisdom Lantern Tarot. I'm bidding a goodbye from you and we'll be coming back again with a new live. This is just a video I'm leaving with you, and if you want a personal in-depth reading, you can just mail me in madhurawisdom@gmail.com. Thank you so much. Stay tuned, stay blessed and stay magical.